نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھیں گے اور اس کے بعد 3 بار اور اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ 4 تکبیریں کیوں ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 1235 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 951 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نجاشی کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو ان کی موت کی خبر دی اور آپ مصلی کی طرف نکلے جہاں آپ جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ فصف بھی آپ نے صحابہ کی صف لگائی، وکبر اربعا، اور 4 آپ نے تکبیروں کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی سورت اگر ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں۔ دعائے ثنا کا ثبوت نماز جنازہ میں نہیں ملتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وسورۃ، اور ساتھ میں کوئی ایک سورت اور پڑھی، وجہرا، اور زور سے پڑھی، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہمیں سنائی دیا۔ فلما فرغ، جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، فسألتہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو جنازے کی نماز زور سے پڑھائی اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا انما جہرت، میں نے زور سے اس لیے پڑھائی، لتعلموا انہا سنت وحق، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے اور حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز جہری بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھی جائے گی، یہ دونوں باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ یہ سنن نسائی کی 1987 نمبر کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے 1335 نمبر کے تحت، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ لیکن عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جنازے کی نماز سری پڑھائی جائے، آہستہ پڑھائی جائے۔ کبھی کبھار تعلیم کے لیے لوگوں کو دعا وغیرہ یاد ہو جائے یا مسئلہ معلوم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے، اس مقصد کے تحت جہری پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عمومی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ سری پڑھی جائے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ، جنازہ کی نماز میں سنت یہ ہے ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافۃ، کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور آہستہ پڑھے، ثم یکبر ثلاثا، پھر 3 تکبیر اور کہیں، والتسلیم عند الآخرہ، اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یہ سنن نسائی کی 1989 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی اور سورت اگر ملانا چاہیں ملا دیں، ضروری سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملا لیں تو بہتر ہے، نہیں ملائیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ سنن بیہقی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 پر یہ روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر، تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد جنازے کی نماز کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی 3199 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کے اوپر جنازے کی نماز پڑھو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے خالص دل کے ساتھ خالص دعا کرو۔ اب جنازے کی نماز میں کون کون سی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ آئیے کچھ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 963 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، فحفظت من دعائہ، تو میں نے آپ کی دعا کو سن کر کے یاد کر لیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے جہری نماز پڑھائی تھی۔ وہو یقول، آپ نے اس جنازے کی نماز میں پڑھا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، اس کو معاف کر دے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اے اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی فرما، اے اللہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر دے، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اے اللہ اس کو پانی سے، برف سے اور اولے سے دھل دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ اس کو میل اور کچیل سے ویسے ہی، اس کو گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دے جیسے میل اور کچیل سے سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اے اللہ اس کے گھر سے بہتر اس کو گھر عطا فرما، اس کے جوڑے سے، اگر یہ عورت ہے تو اس کے شوہر سے، اگر یہ مرد ہے تو اس کی بیوی سے بہتر جوڑا اس کو عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر اہل اس کو عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے، وَعَذَابِ النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میں دعا ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ
वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यज़ु मिनद दनस वअब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही व अहलन खैरन मिन अहलिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही व अदखिलहुल जन्नह व अईज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिन नार। हज़रत औफ़ बिन इब्न मालिक कहते हैं इतनी बेहतरीन दुआ अल्लाह के रसूल ने ये पढ़ी जनाजे पर कि मैंने तमन्ना की अन अकून ज़ालिकल मय्यित के काश वो मेरा जनाजा होता, मैं मरा होता और मेरे लिए अल्लाह के नबी ऐसी दुआ करते। तो ये दुआ हम जनाजे की नमाज़ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और दुआ है, अबू दाऊद 3201 नंबर, तिरमिज़ी 1024 नंबर और इब्न माजा 1498 नंबर के अंदर वो दुआ मौजूद है। उस दुआ के अंदर क्या अल्फाज हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ़्तिना बादा। क्या मतलब हुआ इस दुआ का? ऐ अल्लाह हमारे ज़िंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे, हम में से जो लोग हाजिर हैं उनको बख्श दे, जो गायब हैं उनको बख्श दे, हमारे मर्दों को बख्श दे, हमारी औरतों को बख्श दे। ऐ अल्लाह हम में से हमारे छोटों को बख्श दे, हमारे बड़ों को बख्श दे। ऐ अल्लाह हम में से जिसको तू ज़िंदा रख उसे इस्लाम पर ज़िंदा रख और जिसे मौत दे उसे ईमान पर मौत दे। ऐ अल्लाह इस मरने वाले के अज्र से हमें महरूम मत फरमा और इसके बाद हमें किसी फितने में मुब्तला मत फरमा। ये दुआ भी हम जनाजे की नमाज़ में पढ़ सकते हैं तीसरी तकबीर के बाद। उसके बाद चौथी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे और फिर दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। दोनों तरफ सलाम फेरने की दलील क्या है? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सलासु खिलालिन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलुहुन्ना तरकहुन्ना अन्नास। 3 आदतें ऐसी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, लोगों ने छोड़ दिया है। इहदाहुन्ना, उन 3 आदतों में एक आदत ये भी थी अत्तस्लीमु अलल जनाज़ा मिस्ल तस्लीम फ़िस्सलाह, कि जनाजे की नमाज़ में वैसे ही सलाम फेरा जाए जैसे आम नमाज़ों में फेरा जाता है। ये सुनने बैहक़ी की सही रिवायत है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 43 के अंदर 43 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। लेकिन याद रखें कि जनाजे की नमाज़ में सिर्फ दाहिनी तरफ एक तरफ सलाम फेरना भी अल्लाह के रसूल से साबित है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, फ़कब्बर अलैहा अरबान, 4 तकबीरें आपने कहीं, वसल्लम तस्लीमतन वाहिदा, और एक मरतबा आपने सलाम फेरा। ये मुस्तदरक हाकिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है और सुनन बैहक़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है और ये रिवायत सही है। 3 ऐसे औक़ात हैं जिनमें जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए इल्ला ये कि मजबूरी हो, लेट करने में लाश वगैरह के बिगड़ने वगैरह का ख़तरा हो या कोई और मामला हो, इमरजेंसी हो तो पढ़ सकते हैं। 3 औक़ात में नहीं पढ़ना चाहिए। हज़रत उक़बा इब्न आमिर कहते हैं कि 3 औक़ात ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन 3 औक़ात में नमाज़ पढ़ने से मना किया और हमें मुर्दों को दफन करने से भी मना किया। हीन तत्लु शम्स, जिस वक्त सूरज निकल रहा हो, तुलू हो रहा हो, हत्ता तरतफिया, हीन तत्लु शम्स बाज़िगतन, जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा हो उस वक्त ना तो मुर्दे को दफन किया जाए ना कोई नमाज़ पढ़ी जाए, हत्ता तरतफिया, यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए, थोड़ा सा बुलंद हो जाए। वहीन यक़ूम क़ाइमुज़ ज़हीरती, और बिल्कुल ऐन निस्फ़ुन नहार के वक्त, बिल्कुल दोपहर के वक्त अल्लाह के रसूल ने हमको नमाज़ पढ़ने से और मुर्दों को दफनाने से मना किया। हत्ता तमील शम्सु, यहाँ तक कि सूरज थोड़ा सा ढल जाए। वहीन तज़य्यफ़ शम्सु लिल-ग़ुरूब, और तीसरा वक्त जब सूरज गुरूब होने वाला हो, डूबने वाला हो, हत्ता तग़रुब, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए, सनसेट हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, तो उसके बाद जो है हम नमाज़ पढ़ें या मुर्दे को दफनाएं। इन 3 औक़ात में अल्लाह के नबी ने मना किया। ये सही मुस्लिम की 831 नंबर की 831 नंबर की सही रिवायत है। मोहतरम नाज़रीन, जनाजे की नमाज़ पढ़ने का और जनाजे में शामिल होने का क्या सवाब है? आइए एक हदीस देखते हैं। सही मुस्लिम की 945 नंबर की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जिसने जनाजे की नमाज़ पढ़ी और जनाजे की इत्तिबा नहीं की, जनाजे में शामिल नहीं हुआ, उसको 1 क़ीरात सवाब मिलेगा। और जिसने जनाजे की नमाज भी पढ़ी और जनाजे में पीछे पीछे गया तो उसको 2 क़ीरात मिलेंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये क़ीरात क्या है? आपने फरमाया अस्ग़रुहुमा मिस्ल उहुदिन, 2 क़ीरात आपने फरमाया सवाब मिलेगा। कहा कि उसमें जो छोटा क़ीरात है वो उहुद पहाड़ के बराबर है।
सोचे कि पहाड़ कितना बड़ा होता है, यानी अल्लाह ताला का ऐसा सवाब जो हमारी लिमिट और हमारे कैलकुलेशन के बाहर है, वो क़िरात से मुराद है। तो जनाजे की नमाज में शामिल होने और जनाजे के पीछे चलने का ये सवाब है। औरतों को जनाजे के पीछे जाने से मना किया गया है तंजीहन, कि वो इससे बचे। हराम तो नहीं करार दिया गया, लेकिन तंजीहन कि उनको बचना चाहिए, उनके लिए मुनासिब नहीं है। हज़रत उम्मे अतिया कहती हैं कि नुहीना अन इत्तिबाइल जनाइज़, हम औरतों को मना किया गया जनाजे के पीछे चलने से। वलम युअज़म अलैना, सख्ती के साथ मना नहीं किया गया। ये बुखारी की 1278 नंबर की और सही मुस्लिम की 938 नंबर की रिवायत है। जनाजे में रोते चिल्लाते हुए जाना या आग वगैरह किसी चीज़ की धुनी वगैरह दे करके लेके जाना, ये दोनों चीज़ें हराम हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुत्तबउल जनाज़तु बिसौतिन वला नार, जनाजे के पीछे पीछे जब चला जाए तो आवाज़ के साथ या आग वगैरह लेकर के न जाया जाए। ये अबू दाऊद की 3171 नंबर की सही हसन दर्जे की रिवायत है। मान लीजिए अगर रोशनी वगैरह की ज़रूरत है तो टार्च वगैरह लेके जा सकते हैं, या आग भी जलाने की ज़रूरत पड़े तो जला सकते हैं। लेकिन दौर जाहिलियत में तरीक़ा था कि गम के इजहार के लिए वो धुनी वगैरह और आग वगैरह लेके जाते थे, वो चीज़ मना है। जनाजे को जब लेके जाया जाए तो जल्दी जल्दी लेके जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्रिउ बिल जनाजा, जनाजे को जल्दी जल्दी लेके जाओ। फ़इन तकु सालिहतन फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहा अलैहि, अगर जनाजा किसी नेक इंसान का है तो तुम भलाई की तरफ उसको लेकर के जा रहे हो। व इन तकुन गैर ज़ालिक, और अगर नेक इंसान का नहीं है, फ़शर्रुन तज़ऊनहु अन रिक़ाबिकुम, तो तुम एक बुराई को अपने गर्दन से जल्दी से उतार दो। ये सही बुखारी की 1315 और सही मुस्लिम की 944 नंबर की हदीस है। जनाजे में आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी तरफ चलना जायज़ है, लेकिन सवारी पर जो आदमी हो उसे पीछे चलना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अर्राकिबु खल्फल जनाजा, सवारी पर जो आदमी हो वो जनाजे के पीछे चले। वल माशी हैसु शाअ मिन्हा, और पैदल चलने वाला जिधर से चाहे चल सकता है। ये तिरमिज़ी की 1036 नंबर की और अबू दाऊद की 3164 नंबर की सही रिवायत है। लेकिन अफजल है कि जनाजे के पीछे चला जाए, क्योंकि इत्तिबा करने का हुक्म दिया गया है और इत्तिबा का मतलब होता है पीछे चलना। तो अफजल और बेहतर है कि जनाजे के पीछे रहा जाए। जब हम कब्रस्तान से गुज़रें या कब्रस्तान जाएं तो वहाँ हमें क्या पढ़ना चाहिए? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अय अल्लाह के रसूल, जब मैं कब्रस्तान जाऊँ तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम ये दुआ पढ़ो, अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिहिम ललाहिक़ून व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून। क्या तर्जुमा है इस दुआ का? कि सलाम हो मोमिन और मुसलमान घर वालों पर, और अल्लाह रहम करे आप में से जो पहले चले गए और जो बाद में चले गए, और इंशाअल्लाह हम भी बाद में आपसे मिलने वाले हैं। ये सही मुस्लिम की 974 नंबर की हदीस है। ये दुआ आप याद कर लें, अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून। ये दुआ के अल्फाज भी साबित हैं, और एक दूसरे अल्फाज हैं वो भी सही मुस्लिम के अंदर 975 नंबर के तहत वो अल्फाज आए हैं, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून। ये दोनों अल्फाज साबित हैं, दोनों अल्फाज आप पढ़ सकते हैं। दूसरी जो दो अल्फाज हैं, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। ये अल्फाज भी हदीस से साबित हैं। कब्र को जब खोदा जाए तो कब्र को गहरा खोदना और कुशादा खोदना ये सुन्नत है। जब शुहदाए उहुद को दफन किया जाने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहा इहफिरू व औसिउ व आमिकू व अहसिनु। कब्र जब खोदो तो कुशादा खोदो, यानी बहुत तंग ना हो, मुर्दे के लिए कुशादा कब्र खोदो। व आमिकू, और गहरी कब्र खोदो। व अहसिनु, और अच्छी कब्र खोदो। ये तिरमिज़ी की 1713 और अबू दाऊद की 3215 नंबर की सही रिवायत है। कब्र दो तरीके की खोदी जाती है, एक जिसको बगली कहा जाता है लहद, और एक जिसको शिक कहा जाता है संदूकी कब्र। दोनों कब्र खोदना जायज़ है, दोनों सुन्नत से साबित है, लेकिन अफजल है लहद, अफजल लहद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद जो कब्र खोदी गई वो लहद थी, जैसा कि इब्न माजा की 1557 1557 नंबर की सही रिवायत है। जनाजा मर्द का हो चाहे औरत का हो, उसको कब्र में उतारने का काम मर्द ही करेंगे। मैयत के घर वाले इस काम के ज़्यादा हकदार हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، غسل تو رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو غسل دیا، فذهبت انظر ما يكون من المیت، تو میں دیکھنے لگا کہ شاید جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو میت کے اندر سے کچھ گندگی وغیرہ خارج ہوتی ہے، فلم ارى شيئا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں اور آپ کو غسل دیتے وقت ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی، وکان صلی اللہ علیہ وسلم طیبا حیا ومیتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں بھی پاکیزہ اور طیب تھے اور اپنی وفات کے بعد بھی پاکیزہ تھے۔ وولی دفنہ واجنابہ دون الناس اربعۃ، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دفن میں سارے لوگ نہیں شامل